میں سب کا معلوم ہے، ویسے پھر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے کسی وقت کسی زمانے میں حوض تھا. 47 کے بعد جو ہے یہ قانون بن گیا ہے کہ جو جس پوزیشن میں تھا وہ اسی پوزیشن میں رہے گی، اس کی پوزیشن کو بدلا نہیں جا سکتا. تو ہوا یہ کہ زکریا صاحب جب ایم ایل اے تھے تو انہوں نے بہت میٹنگ لیے، اس کو میونسپلٹی نے ایکوائر کر کے یہاں میونسپل مارکیٹ بنانے کی بات طے کی. ہزاروں کا مجمع یہاں جمع ہوا. اب ظاہر وہ منسٹر بھی تھے، ایم ایل اے بھی تھے، یہ تھے. میں نے ان کو خاموش کر کے ان کو بات کیا. میں بولا آپ کیا بولنا چاہتے ہیں تو سن لیجیے کہ جہاں تک میرا عرض کرنا آپ سے یہ ہے کہ یہ کبھی حوض تھا، لیکن اب یہ حوض نہیں ہے، یہ اب صحن مسجد ہے. اور جہاں مسجد بن چکی ہے، صحن مسجد کو کب کہتے ہیں، اس کو جو ہے اب اس کی حالت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو وہ لکھا یہ اب صحن مسجد ہے، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں وہاں عیدین میں اور بڑے موقعوں پر اور رمضان مبارک میں مہینہ بھر نماز ہوتی ہے. لہٰذا اس کو اب ہاؤس کی حیثیت سے ہم ایکوائر نہیں کر سکتے. تو ایسا ہے بولے. میں بولا یہ میں نہیں کر رہا ہوں، آپ جہاں کھڑے ہیں یہاں اطراف میں سارے غیر مسلم رہتے ہیں. جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کو بلائیے اور پوچھیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے. انہوں نے بیچاروں نے جو ہے وہاں کے موجود لوگوں اور یہ وہاں کے سارے لوگوں کو آواز دے کر بلائے اور انہوں نے جو ہے واضح کیا کہ یہ اب صحن مسجد ہے، یہاں نماز ہوتی ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں. چنانچہ انہوں نے وہ اپنا جو کارپوریشن نے جو ہے کمپلیکس بنانے کا شاپنگ بنایا کیا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ کینسل کر دیا کہ یہ شاپنگ کمپلیکس اس لیے نہیں بن سکتا کہ یہ اب مسجد ہے اور اس مسجد کو جو ہے کہ یہ کوئی آپ رکھ نہیں سکتے. وہ بات ملتوی ہو گئی اور اس کے بعد سے آج تک یہ صحن مسجد ہے. یہاں اب بھی نماز ہوتی ہے، رمضان مبارک میں مہینے بھر نماز ہوئی. یہاں جمعہ کی نماز لوگ یہاں پڑھتے ہیں. اور 47 کے بعد سے یہ قانون ہے کہ 47 میں جس جگہ کی جو پوزیشن تھی اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا 47 میں اس جگہ کو اس پوزیشن ہاؤس کی نہیں تھی بلکہ مسجد کی باضابطہ سیڑھیاں جو ہے بنی ہوئی ہے. کسی سے پوچھی تو جو ہے یہاں نماز ہوتی ہے جو ہے وہ اسی وجہ سے وہ سارا پلان منسوخ ہو گیا. یہ بات شاید آج کے عہدیداروں کو معلوم نہیں تھی. انہوں نے اپنے طور پر جو ہے پلان، ان کی نیت بھی خراب نہیں ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ ایک پلان بنایا اور جو ہے وہ ہاؤس کو ایکوائر کرنا چاہا. وہ ہاؤس کو ایکوائر تو کر سکتے ہیں ہاؤس کو، لیکن وہ اب ہاؤس نہیں رہا. باقی وہ اب صحن مسجد ہے. کسی سے بھی غیر مسلم سے، بی جے پی والے سے، کسی بھی جو ہے شدت والے سے پوچھیے. اب مولانا صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر، وہ بتائیے. میرا بولنا یہ ہے کہ وہ ان کی نیت خراب نہیں ہے. اب آج کے جو ذمہ دار ہیں عہدیدار ہیں، جو ہے کلکٹر صاحب ہو یا جو ہے امتیاز علی صاحب ہو، یہ ہو، ان کی نیت خراب نہیں ہے. لیکن شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم جو ہے صحن ہاؤس مسجد کو ایکوائر کر سکتے ہیں، صحن مسجد کو ایکوائر نہیں کر سکتے. لہذا اب جو ہے وہ ان کا اختیار قانونی طور پر بھی ختم ہو گیا. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ مہربانی فرما کر اب اس پلان کو چھوڑ دیجیے اور یہ اس کے علاوہ آپ کوئی اور پروگرام رکھتے ہیں.
हाउस के सर्वे का जो वीडियो वायरल हो रहा है मौलाना साहब, तो क्या आपसे सर्वे वालों ने आपसे इजाज़त तलब की थे यहाँ मिलने आने के लिए? उस बारे में दर्शकों को बताइए। किसी ने मेरे से यहाँ आने के बारे में कोई बात न मेरे से किया न मतवते से। किसी ने आने के बारे में न पूछा, न इत्तला दी, न हमको मौजूद रखा। अपने तौर पे किया सब। ओके। ये जो 47 के बाद अब मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो बाज़ाब्ता मस्जिद और मस्जिद में शामिल जो है मौजूद है और है शामिल वो, इसलिए। और जहाँ नमाज होती है, जहाँ मस्जिद है, उसको मुझे क्या किसी को भी इख्तियार नहीं है कि नमाज के अलावा किसी और बात की बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद शाहगंज का नाम, ये एक तारीख़ी मस्जिद है 400 साल पुरानी, और इसी मस्जिद से मुत्तसिल इसको लग कर 400 साल पुराना ख़दीम काफ़ी बड़ा हाउस है। इस हाउस में आज से 52 साल पहले पानी हुआ करता था। जब मस्जिद की तामीर हुई थी, उसी के साथ का हाउस है। 52 साल पहले तक इसमें पानी भरा हुआ होता था। पिछले 52 सालों से इसमें पानी नहीं है, और ये हाउस अब मस्जिद के सहन की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। रमज़ान में इस्तेमाल होता है, ईदैन में इस्तेमाल होता है। कई वक्त ऐसा होता है कि मस्जिद में जगह नाकाफ़ी होती है, हाउस में भरने के बाद भी लोग रोडों पर चले जाते हैं, तो ये हमारे ही लिए जगह नाकाफ़ी होती है। 14 जून को इम्तियाज़ जलील साहब, कलेक्टर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब कॉरपोरेशन यहाँ पर मस्जिद पर दौरे के लिए आए असर की नमाज के बाद, और कुछ देर के बाद में उनकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, फेसबुक अकाउंट पर इम्तियाज़ भाई के ये न्यूज़ फ्लैश होना शुरू हुई कि इम्तियाज़ साहब, कलेक्टर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब शाहगंज मस्जिद के हाउस का दौरा किए, और इस बात पर गौर किया जा रहा है कि क्या इसे पानी के ज़ख़ीरे के लिए, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाद में कुछ न्यूज़ पेपर्स वगैरह में भी आई। हम मस्जिद में ही मौजूद थे, हमें कोई इत्तला नहीं थी, ना पहले किसी का फ़ोन आया, ना पहले किसी ने बात की, ना बाद में ही किसी से हमारी राब्तगी हुई, किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। ये चीज़ गुजरने के बाद जैसा आवाम की नज़र में आई, वैसे ही हमारी ही नज़र में आई। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही बातें आप लोग के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पहली बात तो हमको इस बात का अगर पहले से इल्म हो जाता तो हम पहले ही जाकर उनसे बात कर लेते। इम्तियाज़ साहब अगर हमें बुला लेते तो हम चले जाते, हम कोई इसमें छोटे नहीं होते। इम्तियाज़ साहब हमारे खासदार है और बड़े मोतबर आदमी हैं, वो बुलाते तो हम चले जाते। इस मौजू पे अगर पहले बात हो जाती तो शायद बात इतनी आगे तक न जाती, लेकिन उन्हें ये लगा हो कि चूँकि फाइनल प्रपोजल नहीं है, सिर्फ गौर किया जा रहा है, तो इजाज़त नहीं लेना। बहरहाल अगर इजाज़त नहीं, अगर इत्तला भी होती तो उसके ऊपर बात पहले हो जाती तो बेहतर होता। अब दूसरी बात यह है, चूँकि पिछले 52 सालों से उस जगह को बहैसियत मस्जिद का सहन और मस्जिद के आंगन के तौर पर हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि 2 जनरेशन गुजर चुकी है जिसने उसको बहैसियत मस्जिद ही इस्तेमाल किया है। पानी भरा हुआ तो देखा ही नहीं। तो आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे जब तक हमारी हयात है कि वो मस्जिद का सहन ही बना रहे, वहाँ पे मस्जिद की नमाज ही अदा हो, और उसके अलावा किसी और काम में उसका इस्तेमाल ना हो। सितारे साहब, आपकी मस्जिद कमेटी में क्या मशवरा हुआ? जो यहाँ खासदार साहब जो आए थे सर्वे के लिए, तो क्या आपसे इजाज़त तलब की थी उन्होंने? खासदार साहब की तरफ से कोई इजाज़त नहीं थी, हमें कोई इत्तला भी नहीं थी। हालांकि हम लोग असर की नमाज के बाद यहीं पर मौजूद थे, इमाम साहब भी थे, मैं खुद भी था, हम यहीं पर मौजूद थे, लेकिन हमें कोई इत्तला नहीं थी। अलबत्ता मौलाना मोहम्मद मुजीबुल्लाह साहब के जो फर्जंद है वली मोहम्मद भाई वाजिद साहब, ये उनके साथ जो तस्वीरें आई है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, उसमें कहीं नज़र आ रहे हैं, तो लोगों को ये गुमान हो रहा है कि उन तस्वीरों में मौजूद है तो शायद मस्जिद के इंतज़ामिया की तरफ से रजामंदी हो। तो हम आपको ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारी इसमें हरगिज़ रजामंदी नहीं है, बल्कि हम इसकी मजम्मत करते हैं कि मस्जिद की जगह किसी और काम के लिए इस्तेमाल की जाए। सितारे साहब, आपने बताया कि मुजीब साहब के फर्जंद उसमें नज़र आए, तो हमारा सवाल ये है कि क्या मुजीब साहब के फर्जंद मस्जिद कमेटी में कोई मेंबर हैसियत है? नहीं, ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या कोई जिम्मेदारी का वो नहीं दिया हुआ है। मस्जिद के तमाम जो फैसले होते हैं वो मैं बहैसियत मौरूसी मुतवल्ली और मौलाना मोहम्मद मुजीबुल्लाह साहब बहैसियत पेशमाम और ख़तीब मस्जिद शाहगंज, हम दोनों मिलकर ही फैसले तय करते हैं। नहीं, इसके ताल्लुक़ से हमें पहले भी कोई इत्तला नहीं थी, और उनके जाने के बाद भी उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से हमसे कोई राब्तगी नहीं हुई, और हमने भी जाकर उनसे कोई राब्तगी नहीं की, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि अभी ऑफिशियल स्टेटस क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। कुछ हमारे सामने ऑफिशियली रिकॉर्ड पर या लेटर पर या फ़ोन पर
किसी भी तरीके से कोई बात हमारे सामने आई ही नहीं है। लेकिन हमने आपस में इमाम साहब से ही मशवरा किया, दीगर उलमाए दीन औरंगाबाद से भी ये मशवरा हो चुका है कि इसको हम बहैसियत मस्जिद ही रखेंगे। तो मेरी इस आपके जो न्यूज़ चैनल है इसके ज़रिए से इम्तियाज़ साहब से बहुत मौदबाना अदबन हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ये जो प्रपोज़ल है जिससे शहर औरंगाबाद में एक फितना पैदा होने का अंदेशा है, इसको आप मनसूख करते हुए एक आप भी जो है इसको न्यूज़ के ज़रिए या अखबार के ज़रिए इस बात को वाज़ेह कर दें कि ये इस किस्म का ये मनसूबा जो है टाल दिया गया है। मोहम्मद वाजिद, मैं इस मस्जिद का अदना सा खादिम हूँ और मैं एक चीज़ बता दूँ कि MP साहब के साथ जो मेरी फ़ोटो उसमें आई है, मैं एक इंसानियत, एक बड़ा इंसान आने के नाते से यहाँ पर आया था और जब बात हुई तो मैंने कलेक्टर साहब को भी ये कहा कि आपको जो भी बात या डिसीज़न लेना है उसका हक सिर्फ मुतवल्ली साहब को है। और उन्होंने ये कहा कि इमाम साहब मुखंड, तो मैं बोला इमाम साहब सिर्फ इमाम है, यहाँ का जो भी फैसला होता है वो मुतवल्ली साहब लेते हैं, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। जो मेरा वीडियो उसमें वायरल हुआ है, ये मैं एक अदना सा खादिम के तौर पर यहाँ पर आया था और देखना था तो वो बता दिया। बाकी जो बातें वायरल हो रही है कि हमारी तरफ से इसकी इजाज़त दे दी गई है, तो अगर मैं इजाज़त देता हूँ तो मैं कोई इस मस्जिद का ना मुतवल्ली हूँ ना कोई ज़िम्मेदार हूँ, मैं एक यहाँ पर साफ़ सफाई थोड़ी बहुत खिदमत करने वाला बंदा हूँ। तो बराए मेहरबानी अगर किसी के दिलों में ये शुबा आया हुआ है कि मौलाना मोहम्मद मुजीबुल्लाह साहब के बच्चे ने उन साथ में रहकर उसकी परमिशन दे दी है, तो मैं फिर आपको वजाहत कर दूं कि मेरा एक अदना सा खादिम हूँ, खादिम ही रहूँगा। मेरे वालिद की जो इज़्ज़त है वो एक अलग इज़्ज़त है, मैं एक खादिम हूँ, मेरा जो रोल है मैं वो अदा करूँगा। और यहाँ पर छोटा भी जो काम होता है हम मुतवल्ली साहब की इजाज़त के बगैर नहीं करते हैं। रमज़ान में भी और पूरे बरस के 12 महीने अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग ये जहन में बिठा लें कि ना ही इसकी इजाज़त दी गई है और ना ही दी जाएगी। एक सर्वे के लिए आए थे, आपने कर लिए सर्वे, ठीक है, मगर उसकी परमिशन जब तक मुतवल्ली साहब या पूरे औरंगाबाद की आवाम नहीं देती है तो वो काम आगे नहीं बढ़ सकता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।